Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. आदरणीय श्री बनवारीलाल जी, दोनों अग्रवाल साहब, हमारे रविंद्र जोशी जी, हमारे वाइस प्रिंसिपल, उपस्थित अन्य लेक्चरर्स, अध्यापकगण, अन्य उपस्थित अतिथिगण, डिग्निटरीज और मेरे प्यारे प्यारे युवा मित्रों, भाइयों और बहनों, my very dear young friends. I am extremely happy to meet you all this morning in this beautiful college. At the outset, I would like to thank the organizers for giving this opportunity of meeting you all. It's always a pleasure to meet the students, the young generation who are going to make future India and going to make a new world civilization, a global civilization waiting to usher in, for which India has to play a very important key role. So it's always a pleasure to meet the youngsters, young generation in any part of the world. But when the youngsters are brilliant, then it becomes a greater pleasure. And I came to know that this college has achieved extraordinary distinction, for which I must congratulate the management for bringing out such an excellence. Swami Vivekananda always wanted excellence in everything. In the footsteps of Sri Krishna, Arjuna, Sri Krishna what he told to Arjuna, Yoga Karma Sukhaushalam. Now Japan is talking about TQM, Total Quality Management and Zero Defect. Sri Krishna talked about it 5,000 years back. Yoga Karmasu Kaushalam. Excellence leads to yoga. Excellence leads to the great union. Excellence leads to the perfection. And perfection is the ultimate goal of life. And I am very happy that this college has achieved that excellence. But again, Swami Vivekananda said, arise, awake and stop not till the goal is reached. So I will say, go forward. I expect this college to further grow, develop in all departments. Excellence in academic field already is there. Further excellence in academic field, excellence in all round development personality of the students, and bring out a college of a unique distinction, which is having students having extraordinary IQ, extraordinary EQ, and extraordinary SQ, all the three leading to TPD, what I call TPD, Total Personality Development. And this college should become a pioneer in this area and lead the whole of Maharashtra and India. That is the dream I am having today. And that is why I have come today. Though few days back I did not know that I will be here. But I got an email from this college that since you are coming to Nagpur for the function of our Ramakrishna Math at Dhantoli, the 3 days celebration of Swami Vivekananda 150th birthday anniversary celebration, and also Sri Ravindra Joshi ji had called me for the Dharmpet College. Yesterday I spoke there on Swami Vivekananda Sina. Today I am going to speak at 6 p.m. at Dharmpet Arts and Commerce College on how to get happiness and peace. Everybody wants happiness and peace nowadays, whether in America, whether in Europe, whether in India. And so that is the topic on which I am going to speak today. But just now, I am extremely happy to talk to you, and I will just say a few brief words. I want to spend more time on question answer session. I want to have interaction with you. I want
want a heart-to-heart talk with you. You listen carefully. Then the slips of paper will be given to you. You ask any question that you want to ask me. Need not be necessarily philosophical question. The problem that you are facing in life, whether in family, whether in the college, whether in your actual practical life, you write down your question, your problem. You may or may not write your name. Yesterday, I was at Priyadarshini Engineering College, so one student wrote, I want to commit suicide. Then I had to give, but the name was not written. Had I told them to write their name, they would not write like that. So I want, what is your problem? You tell me. Then only I can answer, then the answers will be useful to you. You give me your question that come. Abhinay, please, Abhinay. Disturb hoga. Concentration is very important. I will first then start with concentration. You see, do one thing at a time. Now supposing at present you are listening to me so attentively. Already physically you are present. Okay? All of you are physically present, I know. Mentally how many are present? Now you are telling. But again after 5 minutes you will think, अच्छा स्वामी जी का लेक्चर कब खत्म होगा? एक क्वेश्चन, देखो अभी जब खत्म होगा, अभी जब तक तो निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है. देखो जब खत्म होगा पता नहीं कितना होगा. ये सब थॉट्स विल कम. अच्छा लंच में आज क्या आइटम होगी? ये सब थॉट आएगा. दिस इज व्हाट इज आवर ह्यूमन नेचर. सो कॉन्सेंट्रेट वेरी. ऑलरेडी देयर इज सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस. उसमें भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आएगा. कोई आकर के यहाँ पर स्टेज में आकर के नाचना शुरू करेगा, या कोई बंदर आ गया. अंदर में तो बंदर है ही, और बाहर भी बंदर आ गया तो देखो तो स्टिल मोर. अभी वो स्लिप्स ऑफ पेपर अभी देंगे तो सब वो स्लिप्स ऑफ पेपर लाओ मेरे को दो, तो मेरे बात कोई सुनेगा जो स्लिप ऑफ पेपर के लिए सब हो जाएगा. सो आई विल अनाउंस आफ्टरवर्ड्स. उस समय स्लिप्स ऑफ पेपर देना. आई विल गिव 5 मिनट्स ब्रेक. 5 मिनट्स ब्रेक के समय स्लिप्स ऑफ पेपर देना, उसको कलेक्ट करके मेरे को देना. पर अभी फॉर द टाइम बीइंग फुल कॉन्सेंट्रेशन. एवरीबडी वांट सक्सेस. किसको किसको सक्सेस चाहिए? हाथ ऊंचा करो. अच्छा, इसमें से आधे लोगों को आधी सक्सेस मिलेगी, आधे लोगों को फुल सक्सेस मिलेगी. क्यों? जिसने आधा हाथ ऊंचा किया उसको आधी सक्सेस, और पूरा हाथ ऊंचा किया उसको पूरी सक्सेस. ठीक है ना? अच्छा देखो, जिसको पूरा हाथ ऊंचा करने में भी आलस आती है, वो सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ने वाला नहीं है. अलार्म बजेगा, पदार्थ पे फिर सो जाएगा. है ना? इज इट नॉट ट्रू? तो फुल सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले एक राक्षस का वध करना पड़ेगा. उस राक्षस का नाम बताओ. आलस. अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए? AK-47 चाहिए. AK-47 मैं अभी दे देता हूँ. लाइसेंस की जरूरत नहीं. बिना लाइसेंस वाली AK-47 बताता हूँ. मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ. हमारे भक्तिया में गया था एक जगह पर, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे परिवार बहुत अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है. सुबह 5 बजे उठ करके नहा धो करके वो लोग, उनका श्राइन है, छोटा सा मंदिर है, वहां प्रार्थना करते हैं. और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी. वो छोटी सी बच्ची बोले बहुत अच्छी बच्ची है, सभी गुण अच्छे हैं, बस एक प्रॉब्लम है, सुबह जल्दी नहीं उठती. और उसको जबरदस्ती जल्दी उठाते हैं तो बाथरूम में जाकर के सो जाती है, बंद कर देती दरवाजा. अब क्या करें? ठीक है, आज तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ, कल सुबह उसको लाओ. दूसरे दिन लाया. सुबह बोला कहाँ लड़की कहाँ? बोलो तो सो रही, उठाओ. उठा के लाया. सुबह 5 बजे था. वो कैसी भी करके खड़ी रही, इतनी छोटी सी बच्चे का. क्या है? बहुत नींद आ रही है. अच्छा, बहुत नींद आ रही है, ठीक है. उसको पकड़ करके 10 बार उसको उठक बैठक कराया. जा अब सो जा, और थोड़ी नींद आएगी. वो बोला बस तेरे लिए यही सॉल्यूशन है, रोज उठ बैठ करो. तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जिसको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होता है और अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, उनके लिए है अलार्म को दूर रखना. और जैसे ही अलार्म बजेगा पलंग पर से नीचे गिर जाना, तो थोड़ा सा लगेगा तो थोड़ी नींद उसमें. फिर जाकर के तुरंत पानी खींचना, थोड़ी नींद और कम. और उसके बाद में 100 बार दंड बैठक करना. बस फिर नींद का बाप भी बन जाएगा. 100 बार मत करना. कुछ लोग बहुत दुबले पड़ते हैं.
50 बार 25 बार धीरे धीरे करना। तो कुछ लोग आजकल ऐसे 100 दंड बैठक के नाम से हार्ट फेल हो जाएगा। तो कुछ भी एक्सरसाइज जल्दी करो, योगासन करो, एक्सरसाइज करो। पहले मैं सोचता था ये रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज में, रामदेव बाबा बोले नहीं वो राजस्थान वाले रामदेव बाबा है। तो बोले यहाँ सब योगासन करते होंगे। जो भी होगा, अब रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज नाम है तो करो ना भाई एक्सरसाइज। योगासन करने में हरकत क्या है? वो रामदेव बाबा का फोटो मत रखना, तो एक्सरसाइज योगासन करने में कोई हरकत नहीं। और कमला नेहरू, ये तो मुझे पता नहीं था, यहाँ आकर के नाम मैंने देखा कि रामदेव बाबा कमला नेहरू कॉलेज, तो मुझे बहुत आनंद आया। क्यों? कमला नेहरू जो थी वो रामकृष्ण मिशन की दीक्षित भक्त थी। जवाहरलाल नेहरू तो एथेइस्ट थे, जैसा भगवान वगैरह में ज्यादा नहीं मानते थे, पर कमला नेहरू बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। हमारे रामकृष्ण मिशन के द्वितीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी, ये तो आपको मालूम होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 में, पर वो पहले प्रेसिडेंट नहीं बने। ही बिलीव्ड इन सर्वेंट लीडरशिप, so he did not become the president. First president was Swami ब्रह्मानंद जी, उनके गुरु भाई। सेकंड प्रेसिडेंट स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवानंद जी के पास से कमला नेहरू ने मंत्र दीक्षा ली थी और कई बार बेलू मठ आकर के उनके पास से वो काउंसलिंग लेती थी, सलाह लेती थी, उनके पास से उपदेश ग्रहण करती थी। ये कमला नेहरू। बाद में इंदिरा गांधी भी बहुत बार बेलू मठ आती थी और कमला नेहरू जिनसे ज्यादा मिलती थी, कमला नेहरू तो महापुरुष समाज से मिलती थी स्वामी शिवानंद जी से। अब वो छोटी बच्ची थी इंदिरा, वो तो चुपचाप रहती नहीं थी, शरारती थी। शरारती इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर बन सकी। तो वो शरारती थी, उसको चुप करने के लिए उस समय वहाँ जो सेवक स्वामी जी थे महापुरुष महाराज के, वो स्वामी अभयानंद जी भरत महाराज, वो उसको छोटी बच्ची को रखते थे। तो वो छोटी बच्ची जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो महापुरुष महाराज का तो शरीर चला गया था, पर वो भरत महाराज के पास बहुत आती थी बेलू मठ। तो जो भी होगा, एक कमला नेहरू के नाम से ये कॉलेज है और रामदेव बाबा से तो एक्सरसाइज करो, योगासन करो, दंड बैठक करो। उसके कारण ये जो नींद है वो तुम्हारी चली जाएगी, आलस चली जाएगी। आलस नाम का राक्षस का वध करो। दूसरी बात है, अब सब तो सक्सेस चाहिए। राल्फ वाल्डो एमर्सन नाम के बहुत बड़े थिंकर हो गए, वेरी ग्रेट थिंकर इन अमेरिका। ही टोल्ड ए ब्यूटीफुल थिंग, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। खेलकूद में, पढ़ाई में, संगीत में, किसी भी क्षेत्र में। बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना होगा तुमने। बिस्मिल्लाह खान का जब इंटरव्यू लिया गया, बोले आपको ये सफलता कैसे मिली? बोले मैं बचपन से एकाग्रता पूर्वक रियाज करता था, घंटों शहनाई लेकर के, और सारे घर वाले बोलते क्या सारे दिन पैं पैं करता रहता है। और बाद में उसकी पैं पैं सुनने के लिए $10,000 पर डे देते थे लोग, देते थे। पर शुरू में उनकी पेटे बहुत घंटे तक करनी पड़ती थी, एकाग्रता पूर्वक अभ्यास करते थे। सचिन तेंदुलकर का तो नाम तुमने सुना ही। अभी तो भारत रत्न मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर सभी लोग चाहते हैं भारत रत्न मिले। परंतु उसको जो सफलता मिली, इतनी सफलता मिल रही है, उसका रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? ऑस्ट्रेलिया में एक विकेट कीपर था, उसका नाम था टेलर। नाम सुना है? तो टेलर का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया था, बहुत साल पहले की बात में बताऊं। तो टेलर का इंटरव्यू जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया, उसने बताया कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहा था और हमारे ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं विकेट कीपिंग कर रहा था, मैं बहुत दूर खड़ा था। पर जब स्पिनर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो मैं विकेट के बहुत नजदीक खड़ा हो गया। क्यों? यदि सचिन तेंदुलकर एक भी बॉल मिस करता है तो तुरंत मैं उसको स्टंप आउट कर दूंगा, ये सोच करके मैं स्टंप के बहुत नजदीक खड़ा। और तब मुझे पता पड़ा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ सचिन तेंदुलकर। ये टेलर ने कहा। कैसे? जैसे ही वो बॉलर बॉलिंग क्रीज पे जाता था, सचिन तेंदुलकर बहुत धीमे स्वर में बोलता है, बहुत धीमे स्वर में, सचिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। खुद को ही बोल रहा है, सचिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सचिन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अपने आप को बोल रहा है। और जैसे ही बॉल आया, लूज बॉल आया, 6, 4। क्यों? सचिन
Please concentrate. उसी प्रकार से जब तुम पढ़ने बैठोगे अपना नाम बोलना, please concentrate. Start your study. Tell yourself, please concentrate. Half an hour I am not going to watch TV. Half an hour I am not going to attend any SMS. Half an hour I am not going to send any SMS. Half an hour I am not going to have any chatting. Half an hour I am not going to visit anything. Concentrate. Study, study, study. When I am playing, play, play, play. When I am studying, study, study, study. Study while you study, play while you play, eat while you eat, sleep while you sleep. This is the first mantra for success. Do one thing at a time. When you are listening to me, listen with full attention. When I am talking to you, at the same time I am thinking, अच्छा कल तो गोंदिया जाना पड़ेगा, तो लोकल ट्रेन कितने बजे मिलेगी, ये सब मैं भी सोचूंगा. I am not going to get concentration from you. When I am talking, I should be talking. When you are listening, you should be listening. When you are physically present, mentally absent, you can't get the message. So listen, whatever you do, one thing at a time and with full concentration. That is why Swami Vivekananda said, if I have to do my education over again, I will not undergo present system of education started by Lord Nikhileswarananda. I will not undergo the present system of education. First I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind, and then information that I can have at my own will. If information is the whole of education, then rishis are then encyclopedias are the great rishis, and libraries will be the great rishis. Information available in the libraries, and now with Google search, just hit the Google search and you get all information. So information is not education. Swami Vivekananda said, education is not the amount of information that goes into your brain and runs riot undigested all your life. It is not the amount of it. It is being and becoming. What you digested, that is most important. If you digested 5 ideas, you are more educated than a person who has learned by heart the whole of library, whole of encyclopedia. Learning by heart. So that's why I am telling, what we are giving nowadays in most of the institutions is not man-making education as Swamiji wanted. It is a parrot-making education. You just learn something and vomit something. What? After examination बोले वो तो vomit कर दिया, अभी मेरे को मत पूछो. परीक्षा के दिन के बाद ही दूसरे दिन पूछो क्या, अरे भाई अभी तो परीक्षा हो गया, अभी उसको मत पूछो, वो तो हो गया, वोमिट हो गया. वो याद रखा. Parrot making. No. Swami Vivekananda said, if I have to do my education over again, I will not undergo the present system of education. First I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind, and information I can have at own will. इतना ज्यादा concentration था, so much concentration. And yes, Swami Vivekananda wanted more concentration. How much concentration he had? I will just give you one example. There are so many examples, I will give you one example because time is not there. You read his biography, then you will get so many examples. I will give you only one example. Swamiji was at that time in Belur. Just a few days before he left his body. As you know, he was born on 12 January 1863 in Calcutta. And he left his body also in Calcutta on 4 July 1902 at the age of 39 years. And that is why, since he was born in 1863, 2013 to 14 will be celebrated as 150th birth anniversary of Swami Vivekananda by the government of India all over the world. But already preparations have started as a prelude to those actual celebrations. And Swami Vivekananda, just before his passing away, at that time was staying in Belur in his room. If you go to Belur, you will find there is a building, 2-story building. On the first floor, Swami Vivekananda's room is there, which you can see. Even now that room has been kept intact. You feel Swami is still staying there. His table, his chair, his clothes, his musical instrument, everything is kept. So Swamiji was staying at the time in that room in Belur. So one day, his disciple
Sharatchandra Chakravarti, he came to meet Swamiji. At that time, Swamiji was reading the book. What is the name of the book? Encyclopedia Britannica. Big volumes, you might have seen in the library. Big volumes, Encyclopedia Britannica. And they had those volumes had come only a few days back in the Belu Math. Then the disciples said, "My God, इतनी सारी पुस्तकों पढ़ने के तो सारी जिंदगी निकल जाएगी, होल लाइफ विल बी स्पेंट." स्वामी का क्या बात करता है, ये कुछ दिन पहले ये किताबें आई है और पहले 10 खंड मैंने पढ़ लिए, अभी मैं 11वां खंड पढ़ रहा हूं। इतने दिनों में 10 खंड पढ़ लिए? इम्पॉसिबल, असंभव, मैं विश्वास नहीं करता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता है? ठीक है, ये पहले 10 खंड जो मैंने पढ़ डाले उसमें से तुझे जो प्रश्न पूछना है पूछ। शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सबके उत्तर दिए और सही उत्तर दिए, और कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा को उद्धृत किया, कोटिंग द वेरी लैंग्वेज ऑफ द बुक। तब शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, ये है मन की एकाग्रता का परिणाम। यदि मन की एकाग्रता रही तो 1 घंटे की 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है। कई विद्यार्थी मुझे पूछते, स्वामी जी ये कैसे हो सकता है, 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कैसे होगी? मैंने कहा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं। पुस्तक हाथ में ले ली, आंख कहाँ है? पुस्तक में। मन कहाँ है? अच्छा, वो तेंदुलकर की सेंचुरी बनी होगी कि नहीं, क्या हुआ होगा, कहां तक पहुंचा? अच्छा, वो हीरो जा रहा था कल टीवी में उस विलेन के पीछे, वो दूसरे रास्ते से जाता था, जल्दी पकड़ता, अरे तू किस रास्ते से जा रहा है वो देख। कितने सारे पेज हो गए और बाद में पता पड़ा, अरे भाई ये क्या कर रहे थे, क्या आ गया, फिर से पढ़ो। होता है कि नहीं? तो अभी हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई 10 घंटे में करते हैं, जब एकाग्रता आएगी तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में होगी। और केवल पढ़ाई में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इन एवरी फील्ड। जैसा अभी बताया, स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सो कॉन्सेंट्रेशन इज की टू सक्सेस। नाउ एवरी वन ऑफ यू वांट्स सक्सेस। सबने कहा हमको सफलता चाहिए। सफलता के लिए क्या चाहिए? मन की एकाग्रता। अब किसको किसको मन की एकाग्रता चाहिए, हाथ ऊंचा करो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड? अभी पूरा हाथ ऊंचा हो गया। वेरी गुड। सो एवरीवन वांट्स फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल सक्सेस। ओके, अच्छा, लैपटॉप है, लैपटॉप खोलो। लैपटॉप है सबके पास? नहीं है? क्या बात करते, इतना बढ़िया लैपटॉप है कि नहीं होगा तो बताना, फिर मेंटल ट्रीटमेंट कर देंगे। इसमें जितनी मेमोरी है दुनिया के किसी कंप्यूटर में नहीं है? ये ह्यूमन ब्रेन में जो मेमोरी है वो किसी कंप्यूटर अभी तक कोई बना नहीं पाया। तो लैपटॉप है सबके पास, खोलो जल्दी से, हम लोग डाटा एंट्री करेंगे। डाटा एंट्री करना है ना? डाटा एंट्री करने से क्या होगा, कभी भी तुम्हारा डाटा रिट्रीव कर सकते हो, कंप्यूटर में रहेगा। ठीक है, तो डाटा एंट्री का मेथड क्या है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। मैं बुलाऊंगा, तुम बोलना, ठीक है? तैयार? डाटा एंट्री, लैपटॉप खुला। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। So this is the formula. C is directly proportional to P, where C is equal to concentration of mind and P is equal to purity of mind. So purer the mind, the greater the concentration. जितना हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। परंतु अब मन शुद्ध कैसे होगा ये भी जानना जरूरी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्यूरिफाई द माइंड। मन शुद्ध कैसे होगा? तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यदि हमारा आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो स्मरण शक्ति अक्षुण्ण बन जाएगी। सो आहार बहुत महत्व का है। आहार का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हम लेते हैं बाहर से वो आहार है। एक तो हम मुंह से लेते हैं, वो शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, हमारे मन को चंचल न करे ऐसा होना चाहिए, एक्साइटिंग फूड नहीं होना चाहिए। पर हम लोग को तो आजकल के युग को तो मालूम है,
क्या अच्छा लगता है बता दूं? पिज्जा, बर्गर, मैगी, है ना, यही सब अच्छा लगता है। और जो फूड सात्विक फूड है वो तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करें, कभी कभी ये फूड लिया करो, What we call this फास्ट फूड। कभी कभी लो, एकदम से बंद करने को नहीं कहूंगा, नहीं तो तुम लोग मेरे को आने नहीं दोगे नेक्स्ट टाइम। बोले ये स्वामी जी को बाहर खाओ, हमारा खाना ही बंद कर रहा है, हमारा जो फेवरेट फूड है वही नहीं लेने दे रहा है। अरे मेरे को ले जाने की क्या बात है? एक छोटी सी बच्ची अपने पिताजी क्या बोलती, पापा पापा नहीं मम्मी ले आओ, ये मम्मी मैगी नहीं बनाती। मम्मी को बदलने की बात करते हैं आजकल बच्चे लोग, तो मम्मी को बदल डालो, वो मैगी नहीं बनाती। तो तुम लोग बोलोगे बनवारी लाल जी को, ये स्वामी जी कभी आने मत देना, ये हमारा आकर के फास्ट फूड हमारा बंद कर देता है। अरे फास्ट फूड हमारा फेवरेट फूड है। तो ठीक है कभी कभी लो, बट यू ट्राई टू टेक सात्विक फूड। ऐसा फूड लो जिससे मन चंचल ना हो, एक्साइटिंग फूड मत लो मोस्ट ऑफ द टाइम, नंबर 1। और जिससे न्यूट्रिशन मिले ऐसा फूड लो। तो दैट इज 1। और कितना आहार लेना चाहिए? ज्यादा कि कम? ज्यादा कि कम? ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और नींद कितनी लेनी चाहिए? ज्यादा भी नहीं नींद भी नहीं। इसीलिए भगवत गीता का श्लोक याद रख लो, बहुत बढ़िया श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, यदि तू योगी बनना चाहता है, एकाग्रता चाहता है, तो आहार और विहार में सम प्रमाण में रहना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। योग्य प्रमाण में निद्रा लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटा, 7 घंटा बहुत है, 7.5 घंटा। कोई यदि कुंभकर्ण के परिवार से आया तो 8 घंटा, उससे ज्यादा आया तो बहुत। उस 6 घंटा कम से कम नींद लेनी चाहिए एक साधारण व्यक्ति के लिए। उसी प्रकार से आहार इतना ज्यादा भी मत लो। जैसा कि एक लड़का था, वो परीक्षा को 15 दिन बैठे थे, बाकी थे। अब वो मामा के यहाँ शादी का निमंत्रण आया, तो मामा की शादी में तो फिर जाना पड़ेगा, ना तो बोल नहीं सकते। अब गया तो वहां पर वो कंपटीशन हो गई गुलाब जामुन खाने की, तो 40 गुलाब जामुन खा लिया। अब आकर के पढ़ने बैठा, परीक्षा है। बोलो परीक्षा में कैसा नंबर मिलेगा? ज्यादा कि कम? तो और दूसरी एक लड़की थी, वो भी परीक्षा के 2 दिन बाकी थे, तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटी तूने कल से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा खा ले। अरे तुझे पता नहीं मेरी परीक्षा है, इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा, तू क्या जानेगी, कभी इंजीनियर बनी है? मेरी इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा है, ये फाइनल है, बस नहीं खाऊंगा। नहीं खाया। और परीक्षा के दिन जैसा लड़की आई नहीं, बोले क्या हो गया? बोल तो हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। तो ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं खाना। युक्त आहार विहारस्य। तो एक तो हम आहार लेते हैं मुंह से, वो एक नॉन एक्साइटिंग होना चाहिए। और दूसरा कैसे आहार लेते हैं? एक आंख से, कान से लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर सबको याद है? सबको मालूम है गांधी जी 3 बंदर? यस और नो? बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत, ये तो सबको मालूम है गांधी जी के 3 बंदर। अब मैं तुमको दूसरे 3 बंदर की बात बताता हूँ। स्विट्जरलैंड के 3 बंदर। हमारे एक स्वामी जी गए थे वेदांत में प्रचार के लिए, वेदांत का प्रचार करने के लिए। वहां एक तालाब के किनारे उन्होंने देखा तो एक मूर्ति थी 3 बंदर की, पर बड़ी विचित्र मूर्ति। उसमें से एक बंदर ने एक आंख बंद की थी, दूसरी खुली रखी थी। दूसरे बंदर ने एक आंख बंद किया, दूसरा खुला रखा। और तीसरे बंदर ने आधा मुंह बंद आधा खुला। तो बड़े आश्चर्य पड़े कि भाई ऐसी मूर्ति, ऐसे तो बंदर कहीं देखे नहीं थे। 2 आंखें बंद, 2 कान बंद, मुंह बंद। तो बात क्या है? बहुत सोचने लगे। सोचते सोचते उनको एक वेद का श्लोक याद आ गया। और वेद का श्लोक याद आया तो तुरंत उनको उसका मीनिंग पता लग गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा।
कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनना, पर एक कान खुला है, अच्छे से जरूर सुनो। भद्रम पश्ये माक्षभिर्यत्रा, एक आंख बंद है, बुरा मत देखना, पर एक आंख खुली, अच्छा से जरूर देखो। टीवी में खराब पिक्चर मत देखना, अच्छी चैनल जरूर देखना। मुझे पता नहीं, कोई बोलते हैं अच्छी चैनल आती है, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, हमारे तो टीवी नहीं है पर हमने सुना है। अच्छी चैनल जरूर देखो, अच्छे कार्यक्रम देखो और अच्छी किताबें पढ़ो। जिन किताबों को पढ़ने से मन में शक्ति का संचार हो, मन में एकाग्रता आए, ऐसी किताबें पढ़ो। विल पावर डेवलप हो, मेंटल पावर डेवलप हो, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, महापुरुषों की किताबें पढ़ो जरूर। और आधा मुंह बंद, किसी की निंदा मत करो, आधा मुंह खुला है, परंतु किसी को प्रोत्साहन के 2 शब्द जरूर बोलो। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स बट हैव ए वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन फॉर अदर्स। लेक्चरर जब पढ़ाते हैं क्लास में तो मुंह बंद रखो कि खुला रखो? बंद रखो। हालांकि उल्टा करते हैं। और प्रार्थना के समय मुंह खुला रखो तो मुंह बंद रखते हैं। मेडिटेशन के समय मुंह बंद रखना चाहिए, प्रार्थना के समय मुंह खुला रखना चाहिए। क्लास में जब कोई पढ़ाते हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। अभी तो तुम लोग का मुंह बंद अच्छा है, तो पीछे में 1-2 जन थोड़ा थोड़ा, बाकी सब जगह तो पीछे में बहुत होता है, पर यहाँ से पीछे में लेक्चर बैठा दिए होंगे। ये आपकी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा, यहाँ पीछे में इतनी बात नहीं हो रही। तो जो भी होगा, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे और अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा तो मन, तो तुम्हारे डाटा में है तो फिर से निकालो, लैपटॉप में है। हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा मन, हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा मन। और मन शुद्ध कैसे होगा? जब आहार शुद्ध होगा। शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, और अशुद्ध आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा मन क्या होगा? शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन। तो थोड़ा सा फॉर्मूला मिल गया, हाउ टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन बाय प्योरिटी ऑफ माइंड, हाउ टू डेवलप प्योरिटी माइंड बाय प्योर फूड। नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2, मेरे पास बहुत यंग फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत यंग फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके साथ बातचीत होती है। उनको पूछता हूँ, अच्छा भैया तो सुबह कितने बजे उठता है? मुझे कुछ निश्चित नहीं, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, रविवार तो 9 भी बज जाता है। अच्छा भैया रात को कितने बजे सोता है? कुछ निश्चित नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, अच्छी पिक्चर हो तो 1 भी बज जाता है। अच्छा भैया तेरा पढ़ाई का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं है, मूड आता पढ़ लेता हूँ। भैया तेरा खाने पीने का टाइम क्या है? खाने का टाइम निश्चित नहीं, भूख लगती खा लेता हूँ। भैया तेरा टीवी देखने का निश्चित नहीं है, खेलने का निश्चित है। फिर मेरे को आप, अच्छा स्वामी जी ये मन की एकाग्रता कब है? कुछ निश्चित नहीं है। तुम्हारा उत्तर तुमको वापस मिल गया। तुम्हारा जब निश्चित नहीं है तो एकाग्रता निश्चित नहीं। तो एकाग्रता निश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब निश्चित करना पड़ेगा। उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेलकूद का टाइम, तो एकाग्रता निश्चित। So if you really want concentration of mind, first thing is सब निश्चित कर लो, एक रूटीन बना लो, फिक्स रूटीन बना लो। कब बनाओगे? कल से कि आज से? है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमा पल्ले होएगी, बहुरी करेगो कब। ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी बोलता है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी क्या है प्यारे जब जीना है परसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में हो? तुलसीदास की अपोजिट पार्टी। तो तुलसीदास की पार्टी में हो, आज से शुरू करो। आज ही एक ऐसा टाइम टेबल रखो, प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल बनाओ। कितने लोग आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं और पहले दिन पंक्चर, बोले अरे भाई हमसे टाइम टेबल नहीं होगा। नहीं, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। 50% सक्सेस तो मिला, अभी तो 0% सक्सेस है, टाइम टेबल ही नहीं है। तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें बहुत आइडियल मत बनाओ। अभी एवरी डे इफ यू आर स्टडीइंग 4 आवर्स तो 4 घंटा ही रखो। 2 घंटा पढ़ते हो 2 घंटे पढ़ने का रखो। 6 बजे उठते हो तो 5:45 बजे का रखो। पर एकदम से तुम 4 बजे उठने का लगाओगे तो नहीं होगा। सो प्रैक्टिकेबल टाइम बना दो
जिसका पालन तुम्हारे लिए संभव है, और वो 1 या 2 हफ्ते के बाद फिर उसको और आइडियल बनाओ, फिर उसको और आइडियल बनाओ, धीरे धीरे ट्राई टू मेक द टैंजिबल मोर एंड मोर आइडियल, बट इन द बिगिनिंग द टैंजिबल शुड बी प्रैक्टिकेबल, सो दैट बिगिनिंग में तुमको निराशा नहीं तो लग जाएगी, अरे भाई क्या टैंजिबल बनाया, कुछ तो होता नहीं है, चलो जैसे थे, नहीं, टैंजिबल इज अ मस्ट। तो सब निश्चित करो। So fixed routine will give you concentration of mind. I am very happy now you are having more concentration. अभी भी तुम लोग you are listening with greater attention and greater concentration of mind. Now this is very important. Being students is very important. If you can develop this power of concentration, this will help you throughout your life. Wherever you are, whether in a job, if you go to NASA, the spacecraft will go smoothly without any problem because you are having 100% concentration. And if you lose the concentration, spacecraft will come back to it and go into the sea. A small 1 fraction of a second gone. So 100% attention and concentration is important when you go higher and higher. So as students try to develop this concentration. This is what I wanted to say. Now the subject that has been given to me is total personality development. तो कितने सारे कोर्सेज हो रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, पर उसमें क्या सिखाते हैं मालूम है? ज्यादा ये सिखाते हैं किस प्रकार का मैचिंग ड्रेस पहनना, मैचिंग ड्रेस होना चाहिए, किस प्रकार की हेयर स्टाइल रखो, और किस प्रकार से एटिकेट्स एंड मैनर्स, हेलो हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, कैसे बोलना, फिर टेबल मैनर्स, कैसे स्पून और फॉर्क से खाना, ये सब टेबल मैनर्स, एटिकेट्स एंड मैनर्स और मैचिंग ड्रेस, ये सब एक्सटर्नल अपीयरेंस, हाउ टू गेट द इंटरव्यू, और फिर एट द मोस्ट हाउ टू गिव पब्लिक स्पीच, बस हो गया पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स पूरा। मैं नहीं कहता ये सब खराब है, दिस इज ओके, बट दैट इज ओनली 1 फ्रैक्शन। टोटल पर्सनल डेवलपमेंट मैंने इसलिए नाम दिया है कि पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से यही सब आजकल हो रहा है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, स्टीफन कोवी हैज रिटन अ बुक, द नेम ऑफ द बुक इज द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इन इंट्रोडक्शन ही सेज, आई हैव स्टडीड द बुक्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट which have been brought out since last 200 years. And I saw the books that have been published during last 50 years are completely different from the books that were brought out earlier 150 years. Earlier books on self-development concentrated on how to develop character, honesty, truthfulness, commitment, and all those virtues and total character development, whereas last 50 years book on self-development, they are only dealing with communication skill, matching dresses, external personality, impression, outside etiquette and manners, and they are all talking about that. They are superficial. But the earlier books, like Samuel Smiles and Orison Swett Morden, if you read their book, including even Norman Vincent Peale, all those authors, they used to give total character development virtues, honesty, truthfulness and all that. Whereas the modern thinkers, modern writers on self-development or personality development are only talking about external development of personality. So external development of personality is a must, but that is not all. So I will give you Swami Vivekananda's concept of personality development. That is total personality development. The first thing he said, physical development of personality is a must. A sound mind and a sound body. You must be physically strong. If you are not having good physical health, you will not be able to study properly, you will not be able to achieve anything, you cannot become a sportsman, anything. You cannot be successful. First is, you must have a strong physical body, for which you must have nutrition, nutritious food, intake, and also regular exercise. This is a must. So physical development person. Swami Vivekananda said, what I want is muscles of iron and nerves of steel, under which there is a mind that is the same material of which the thunderbolt is meant. So he said, I want physical man. Not only that, he was so much in favor of physical strength that he said, you will be nearer to heaven through football rather than by the study of Gita. एक लड़का मेरे पास आया, स्वामी जी मैंने गीता पढ़ना छोड़ दिया,
क्यों? स्वामी जी ने कहा ना कि यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन स्टडी गीता। मैं फुटबॉल लेके आ गया और गीता को छोड़ दिया। अरे भैया पूरा तो पूरा समझ व्हाट स्वामी जी वांट्स टू से। स्वामी जी क्या बोलना चाहते पूरा समझ। स्वामी जी ने क्या कहा? यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल rather than by study of Gita, because by playing football you will develop your muscles, and when you become physically strong you will be able to understand the message of Sri Krishna better. श्री कृष्ण के संदेश को समझने के लिए पहले स्ट्रांग बनो, पर गीता को छोड़ना नहीं है। फुटबॉल खेल करके मजबूत बनो, शारीरिक मजबूत, अब फिर गीता का संदेश अवश्य पढ़ो। But with a frail body, you will not be able to understand the genius of Sri Krishna, the powerful one, the strong one. So physical strength is a must, number one. Physically strong. Most of the students nowadays are not giving this importance. Physically, अभी आजकल कोई फैशन इतनी निकली है, लड़कियां तो एकदम वो जीरो फिगर के पीछे, और बाद में फिर फूंक मारो तो हवा में उड़ जाती। फायदा क्या हुआ फिर? अरे जो हवा में उड़ जाएगी, शून्य में रहेगी, तो फिर वो परीक्षा में गोल्ड मेडल दिख रहा है पर लड़की नहीं दिख रही, वो गोल्ड मेडल का क्या फायदा भाई? तो इसलिए ये सब आजकल की फैशन छोड़ो, फिजिकली स्ट्रांग बनो। थोड़ी सी ये सर्दी हुई तो एकदम से बोले अभी हॉस्पिटल में चलो, फलानी हमारे आईसी यूनिट में भर्ती है। अरे यंग लड़के लड़की आईसीयू में भर्ती, अभी हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। व्हाट इज दिस? बी फिजिकली स्ट्रांग। नंबर वन इज फिजिकली स्ट्रांग। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज लो और रेगुलर अच्छा डाइट लो। रेगुलर डाइट, अभी डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करने के लिए मेरे को ना नहीं पता, डाइटिंग करने में ऐसा डाइटिंग करो कि जिससे तुम कम से कम तुम्हारा एग्जिस्टेंस रहे पृथ्वी पर। उसके बाद डाइटिंग करो ना, हम कहाँ ना बोलो। तो एनीवे, फिजिकली स्ट्रांग इज द फर्स्ट थिंग, बट फिजिकली स्ट्रांग इज नॉट ऑल। शारीरिक रूप से बहुत आगे एक लड़का था, एकदम शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ था, 6 फीट 3 इंच हाइट थी उसकी, और मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील, दिखने में क्या सुंदर। कोई भी बोलता था आहा क्या पर्सनालिटी, देख कर बोलता था, परंतु परीक्षा में मात्र 5 बार फेल होता जाता था। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? यस और नो? नो। दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर्सनालिटी इज ऑल्सो मस्ट। बुद्ध का विकास भी होना चाहिए। केवल शरीर का विकास तो भैंस भी कर लेती है, तो भैंस के समान बन गए, और फिर भैंस के आगे भागवत बोलते हैं ना, भैंस के सामने भागवत का पाठ करो, भैंस क्या समझेगी। उसी प्रकार से वो इतना बढ़िया पर्सनालिटी डेवलप कर दिया, रात दिन एक्सरसाइज करता है, वो करता है, जिम में जाता है, और फिर परीक्षा में फेल। वो नहीं। Intellectually you should be bright, but that is also not enough. One more thing is needed. You should be mentally strong. मैं जब राजकोट में था, अभी 5 साल से बड़ौदा में, हम लोग का भी ट्रांसफर होता रहता है। 173 सेंटर है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, 40 विदेश में, बाकी सब इंडिया में, तो कभी भी हमारा कहीं भी ट्रांसफर होता रहता है। अभी 5 साल से बड़ौदा में हूँ, उसके पहले 8 साल पोरबंदर था, 10 साल राजकोट में गुजराती मंत्री का एडिटिंग करता था। उसके पहले जब राजकोट में था तब की बात बोलो, उसके पहले झारखंड में था, दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख रहा था। तो जब राजकोट में तब की बात है, एक लड़की आई, स्टूडेंट आई, बहुत ही ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट गर्ल, MSc माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्लास पास हुई विथ हाई परसेंटेज। आकर के बोलती है आई वांट टू कमिट सुसाइड, मुझे आत्महत्या करनी है। इंटेलेक्चुअली बहुत ब्राइट है, बहुत दिखने में सुंदर, बहुत सब कुछ है, बहुत गुण है, अच्छी पब्लिक स्पीच करती है, परंतु छोटी सी समस्या है जीवन में, बस मुझे आत्महत्या करनी। दैट मीन्स मेंटली वेरी वीक। मानसिक रूप से तुमको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कितने भी प्रॉब्लम आएंगे, वी विल फेस द प्रॉब्लम। आजकल के लड़के लड़कियां, अभी कल ही सुना कोई मेडिकल कॉलेज की कोई लड़की वो जाकर के हैंगिंग कर दी। लो हैंगिंग क्यों नहीं? ओ मैं उस लड़के को चाहती थी, वो लड़के ने मेरे को ना बोल दिया। अरे तेरे को 1000 लड़के तेरे पीछे आएंगे, चिंता क्यों करती? पहले परीक्षा तो पास कर, अभी सेकेंड ईयर में डॉक्टर बन जा, फिर बहुत सारे लड़के तेरे पीछे आएंगे। लड़के भी ऐसे और डिप्रेशन में आ गए, वो लड़की ने मुझे ना, मैंने प्रपोज किया, ना कर दिया, और मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? पहले पास कर परीक्षा, अच्छी तरह पैसा कमा। लड़कियों का ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा नजर उनके पैसे पर रहती, तुम्हारे चेहरे पर नहीं रहती। तुम लोग ये तुम्हारी सब इंटरनल मैं जानता हूं, तुम्हारी पोल पट्टी।
ये जितने लड़के हैं अपना हीरो बनकर के बहुत अच्छा वो ये बैकअप करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी कौन से मॉडल की मोटरसाइकिल की उसके पीछे लड़के बैठे कि तुम्हारी होगी या तुम्हारे मित्र की होगी। वो ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा बन ठन के बैठा मेरे पीछे आएगी, नहीं। वो तुम्हारी मोटरसाइकिल कौन सी ब्रांड की है, तुम्हारी कार कौन सी ब्रांड की है, उसके पीछे हो जाती है। उनकी नजर पैसे पे रहती है, कितनी साड़ियां, कितने ड्रेस, साड़ियां छोड़ दो आजकल जो ना पुराने जमाने के, कितने ड्रेसेस मॉडर्न और कितने ज्वेलरी या कितने आइटम्स तुम ला सकोगे, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी, उसके ऊपर से तुम्हारा चॉइस होगा। तो पहले सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया। आज के जमाने में सबसे पहले पैसा कमाओ, फिर बाद में बहुत। कहने का मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम लोग इतने मेंटली टूट जाते हैं। ये सब लड़के लड़कियां सब सुसाइड करते, ये करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। प्रॉब्लम आएगा, फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम स्क्वायर, फेस द ब्रूट्स। स्वामी विवेकानंद जब परिव्राजक होकर घूम रहे थे सारे भारतवर्ष में, तो गए थे बनारस, तो वाराणसी में माँ दुर्गा का मंदिर का दर्शन करके वापस जा रहे थे। अचानक कुछ बंदर, बड़े बड़े बंदर, काले मुंह वाले, जिसको हम हनुमान बोलते हैं, एकदम स्वामी जी के पीछे लग गए। और स्वामी तो घबराए, भागे। अब भागेंगे कहाँ, एक तरफ तालाब है, दूसरी तरफ बड़ी दीवार है, तो सीधे भागे और बंदर उनके पीछे भागे। और दौड़ते दौड़ते स्वामी जी थक गए, क्या करेंगे। तब तक में एक वृद्ध सन्यासी ने जोर से चिल्ला के कहा, दौड़ो मत, बंदर का फाका करो। जैसे ही स्वामी जी ने सुना, स्वामी जी दौड़ रहे थे, एकदम खड़े हो गए। उनके हाथ में ऐसा डंडा था, ऐसा घुमाया और सब बंदर फंस गए। स्वामी जी ने कहा, दैट डे आई लर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। क्या? फेस द ब्रूट्स, फेस द मंकीज, फेस द डिफिकल्टीज। तुम्हें जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएगी और यदि तुम उसे डर गए तो मुश्किलें तुम पर हावी हो जाएगी और तुम उनको स्क्वायरली फेस करोगे, सब मुश्किलें भाग जाएगी। फेस द ब्रूट्स। तो इसलिए नेचुरली यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। मेंटल स्ट्रेंथ इज अ मस्ट, और मेंटल विल पावर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। सो मेंटल स्ट्रेंथ इज अ मस्ट, विदाउट दैट ओनली इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज। और ऊपर का मटला यदि खाली रहा तब तो गए काम से। बैंगलोर में हमारा आश्रम है, वहां पर एक रिटायर्ड ऑफिसर आया करते थे, रोज सुबह मंगल आरती में जाते थे। तो मंगल आरती जाते थे तो पैदल जाते थे, तो दो काम हो गया, मॉर्निंग वॉक भी हो गया, मंगल आरती का दर्शन हो गया। दो का एक दिन मंगल आरती अटेंड करके वापस जा रहे थे, तो सुबह का समय था, अभी अंधेरा था, थोड़ा अंधेरा था, अकेले थे, सुबह ट्रैफिक नहीं था। अचानक देखा एक पहलवान जैसा आदमी, लंबा चौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा उनको मारने के लिए। अरे ये सुबह में क्या भला आ गई भाई, मैंने इसको कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे मारने को आ रहा है। तो भागे, दौड़े और ये आदमी उनके पीछे दौड़ा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद, अब रिटायर्ड ऑफिसर बेचारा कितना दौड़ता है, थोड़ी देर के बाद तो थक गया, थक करके फुटपाथ पर बैठ गया, सिर पर हाथ रख करके, बस आज मैं खत्म हो गया, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा और सुबह मेरे को मारने के लिए आया, मैं मार डालेगा। ऐसा करके बेचारे नीचे बैठे। तब तक में तो वो आ गया, वो पहलवान आया, उनको छू करके बोला, मैंने तुमको छुआ, अब तुम मुझे छुओ करके फिर भाग गया। बाद में पता पड़ा मेंटल हॉस्पिटल में भाग गया। दिखने में बड़ा सुंदर था, एकदम 6 फीट 3 इंच हाइट, दिखने में बड़ा सुंदर, पर ऊपर का मटला गायब। इसलिए फिजिकली स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, ये सब होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू विल बिकम ए राक्षसा, तुम राक्षस बन जाओगे। राक्षस मतलब वो जो टीवी में देखते हो 2 सिंग वाले राक्षस नहीं, ये तो मॉडर्न राक्षस सफारी शूट में आते हैं, मॉडर्न राक्षस बनारसी साड़ी में आती है। ये राक्षस ये कौन है? ये जिसको हम राक्षस बोलते हैं, ऐसे राक्षस नहीं, ये सच्चे राक्षस। ये राक्षस कैसे है? ये क्या है? राक्षस का मतलब क्या है? भरते नाम के महान बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने नीति शतकम नाम के ग्रंथ में लिखा है कि इस समाज में 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। एके सत्पुरुषा परात खटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परातम उद्यमव्रत स्वार्थ अविरोधनीय तेनी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निग्रंथि ये ग्रंथि निरर्थकम परहितम तेके न जानी महे। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं।
सबसे पहले का नाम बताया सत्पुरुष। ये कैसे होते हैं? खुद का स्वार्थ त्याग करके दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरा, सामान्य मनुष्य, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये सामान्य मनुष्य कैसे रहते हैं? पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, फिर दूसरों की सेवा करते हैं। तीसरा, मानव राक्षसा, दिखने में मनुष्य है पर है राक्षस, मानव राक्षसा। ये कैसे होते हैं? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, ये है मानव राक्षसा। कहां देखने को मिलते हैं? आपके पड़ोस में, यहाँ घर में। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो क्या करता है? टेबल के नीचे से 10 लाख रुपए लेता है और बिल्डर को बोलता है तुझे सीमेंट में जितनी रेत मिलाना हो मिला ले, पर मुझे 10 लाख रुपए दे दे। और वो बिल्डर बाद में सीमेंट में रेत ही रेत मिलाता है, सीमेंट बहुत कम, और गवर्नमेंट का चेक डैम बन जाता है, रेत वाला डैम। इनॉग्रेशन के 2 दिन बाद बहुत जोर से वर्षा आई, डैम खत्म। क्यों? उसमें तो केवल रेत थी, और हजारों लोग बेघरबार हो जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, देश को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। पर वो इंजीनियर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, मेरा तो मकान बन गया, 10 लाख से दे दे, भाड़ गया। ये क्या है? मानव राक्षसा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रत्येक क्षेत्र में मिलेंगे। मैंने तो केवल ये इंजीनियर का कहा क्योंकि तुम लोग इंजीनियर बनने वाले हो, इसलिए। कैसे इंजीनियर बनोगे? ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मत बनना, टेबल के नीचे से 10 लाख रुपए लेने वाले। मैं ऐसा आशा करता हूं, फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। और भक्ति कहते चौथे प्रकार के मनुष्य भी हैं, परंतु उनका नाम मैं नहीं दे सकता। ते के न जानी महे। पहले का नाम सत्पुरुष, दूसरा सामान्य, तीसरा मानव राक्षस। अब चौथे का नाम क्यों दूं मेरे को पता नहीं है। तो ते के न जानी महे, मैं क्या नाम दूं मुझे समझ में नहीं आता। बहुत से खुल जाए, नाम नहीं मिलता, काम बता देता हूं। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए। पर चौथे प्रकार के ऐसे होते हैं, खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है। किसी के घर में आग लगी, बहुत मजा आ गया। अरे भाई तुमको कुछ फायदा नहीं, उसके घर में आग लगे, हमको बड़ा मजा। कोई परीक्षा में फेल हो गया लड़का, अब बहुत मजा। अरे भाई तुमको 1 मार्क्स ज्यादा मिला, नहीं पर वो फेल हो गया, हमको बहुत मजा। खुद का कोई फायदा नहीं हो रहा है, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आ रहा है, ये है चौथे प्रकार के। ये 4 प्रकार के मनुष्य की बात भरते ने कही है। और मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च की है 5वें प्रकार के लिए, शायद भरते के समय नहीं होंगे, उसका नाम मैं नहीं बोल सकूंगा, ते के न जानी में है, नाम तुम देना, काम बताता हूँ। चौथे प्रकार के ऐसे होते हैं, खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको आनंद आता है। 5वें प्रकार के ऐसे होते हैं, दूसरों के नुकसान में इतना आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके दूसरों का नुकसान करते हैं। तो क्या करते हैं? एरोप्लेन में बैठ गए, बैठ करके वर्ल्ड टावर से टकराया, मैं मर गया, कोई बात नहीं, 5000 को मार डाला, क्या मजा आ गया, है कि नहीं? 5वें प्रकार। मेरी एक आंख भले फूट जाए, शंख वाली कहानी याद है ना? मेरी एक आंख भले फूट जाए और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए और कुएं में गिर के मर जाए, हाँ बहुत मजा आ, भले मैं अंधा हुआ, पड़ोसी तो मर गया। खुद का नुकसान करके जो दूसरों का नुकसान करे, ये है 5वें प्रकार के। तो अभी हमारे समाज में मानव राक्षसा है, चौथे प्रकार के हैं, 5वें प्रकार के हैं, सामान्य मनुष्य है कम है, और सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से देखना नहीं मिलते हैं, माइक्रोस्कोप ही माइनॉरिटी में। क्यों? यही समाज। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स, बट व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन? स्वामी जी ने कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। और हम लोग क्या दे रहे हैं? अधिकांश स्कूल कॉलेजों में आजकल दिया जाता है राक्षस निर्माणकारी शिक्षा। राक्षस माने जो स्वार्थी हैं, फर्स्ट क्लास इंजीनियर, फर्स्ट क्लास डॉक्टर, बट सेल्फिश जायंट्स। सब लोग सेल्फिश जायंट, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाग। ये हम लोग का सबका जो हमारे मन की जो अवस्था हो गई है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था मैन मेकिंग एजुकेशन, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन चाहिए, विच इज नॉट अवेलेबल, विच इज द नीड ऑफ द आवर। कल मैं वहां पर था धर्मपेट में, वहां की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, मैंने यही कहा था, स्वामी जी ने बहुत सारे सिंहनाद किए, पर आज यदि होते तो यही सिंहनाद करते कि मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा लाओ और लव इंडिया,
भारत को प्यार करो। देश के लिए अपना सेक्रीफाइस यदि संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते, कम से कम देश का नुकसान तो मत करो, इतना तो करो। देश का नुकसान 1,86,000 करोड़ रुपया तुम ले लेते हो, शर्म नहीं आती है तुमको, लज्जा नहीं आती है? और एक के बाद एक रोज एक स्कैम आ रहा है। ये तो सब ऊपर है, अंदर में कितना हमको पता नहीं। और अब तो कोई बाकी नहीं रहा। मिनिस्टर तो पहले से बदनाम थे, IAS ऑफिसर पहले से बदनाम थे, IPS ऑफिसर पहले से बदनाम थे, आर्मी बचा था वो भी बदनाम हो गया, जज बचे थे जज भी चले गए, पुलिस तो एकदम एक्सपर्ट ही थे। तो अभी क्या बचा? क्या जर्नलिस्ट बचे थे वो भी गए, जर्नलिस्ट वो भी नहीं, उसके ऊपर भी। तो किस पर विश्वास करोगे? सब जगह पोलम है। और इसीलिए आज स्वामी जी का संदेश जितना महत्वपूर्ण है, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर एक स्कूल कॉलेज में सिखाना पड़ेगा। अरे सबसे पहले मनुष्य बनो, इंजीनियर डॉक्टर बाद में बनना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बाद में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग बाद में, पहले मनुष्य तो बनो। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर बिकमिंग? आर यू बिकमिंग ए राक्षस और नॉट? ये सबसे पहली आवश्यकता है। इसीलिए मैं सब जगह जाकर के ये टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। एंड नाउ द मॉडर्न साइंस इज टेलिंग इफ यू वांट सक्सेस, IQ is not enough. Intelligence quotient is not enough. You must have EQ, emotional intelligence. Daniel Goleman made a research in 1991 and said EQ is more important than IQ. And the latest discovery of the modern science is SQ. Dana Zohar, she is a professor in Oxford University. She has written a book. The name of the book is SQ, Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, where she says neurologically, physiologically, biologically, psychologically, from every point of view, there is a conclusive evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? Intelligence quotient. IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? Emotional quotient. EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. Well, that is your choice. What is the purpose of life? What is the meaning of life? Why are we here on this earth? This is what is all about SQ. And this SQ is zero. I ask many youngsters, what is the purpose of your life? What is the aim of your life? I want to become engineer, I want to become doctor, Yes, that is true. What is the ultimate aim of your life? I never thought about it. So when will you start thinking? The first question you should ask while sitting in the car, where do you want to go? Isn't it? Already the car has started and car is going full speed. Nobody has got the time. Everybody is running very fast, Nobody has the time. And running fast. But where are you going? I do not know. There is a Zen story. A horse was galloping at full speed and somebody asked the person, where are you going? The person said, ask the horse. Because I am not taking the horse, horse is taking me. I am not leading the life, life is leading me. I do not know the purpose of life. Why I am here? What do I want to achieve before I die? Nobody has thought about it. When will you start thinking? Already you are 20 years old, 22 years old, and you never thought, where do I want to achieve? What do I want to achieve? After 5 years, you must know, after 5 years I want to achieve this, after 10 years I want to achieve this, and before I die, I must achieve this. That is the purpose of human life. Dr. Albert Einstein said, the true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. And Teilhard de Chardin says in his book, The Phenomena of Man, what is the difference between man and animal? Then somebody said, intelligence. Somebody answered, intelligence. Teilhard de Chardin says, not necessarily so. Between man and animal, what is the difference? Intelligence. Not necessarily so. Why? Sometimes you find animals are also very intelligent. Supposing you have put some milk, आपने कुछ दूध रख दिया किचन में, देखा
रात को बिल्ली दूध चोरी करके चली गई, तो आपने क्या किया? दूसरे दिन आपने दूध को किचन में नहीं रखा, किसी एक जगह छिपा के रख दिया। दूसरे दिन से देखा बिल्ली वहां से भी चोरी करके चली गई, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट? तो कैट हैज आल्सो गॉट इंटेलिजेंस, एनिमल्स आल्सो गॉट इंटेलिजेंस। मच्छर देखो, मच्छर कितने इंटेलिजेंट होते हैं, वो जानते हैं कब मच्छरदानी खुलेगी, वो तुरंत निकल जाते हैं, बुद्धन घुस जाते हैं और रात को फिर अटैक करते हैं अंधेरे में। How intelligent are the mosquitoes? They are more intelligent than us. So उनमें भी इंटेलिजेंस है. Then what is the difference between man and animal? So beautifully says Terry Chardet says, while a man knows what he knows, an animal does not know what he knows. And man knows what he knows, an animal does not know what he knows. An animal knows, cat knows. बिल्ली ये तो जानती है कि मैं दूध कहां से चोरी करूं, कैसे चोरी करूं, पर चोरी करना पाप है या पुण्य, ये सोचने की बुद्धि बिल्ली में नहीं है। और चोरी करने का ज्ञान मुझे होना चाहिए या नहीं, ये भी नहीं है। और चोरी करने का ज्ञान कैसे आया जाए, वो भी नहीं है। उसको तो इतना मालूम है चोरी कैसे करना। इसी प्रकार से मनुष्य जानता है चोरी कैसे करना चाहिए, मनुष्य ये भी जानता है कि चोरी करना पाप है या पुण्य, और मनुष्य ये भी जानता है कि मुझे चोरी करने का ज्ञान लेना चाहिए या नहीं। ये जो सोचने की बुद्धि है, जिसको हम विवेक बुद्धि बोलते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली विद द ह्यूमन बीइंग। और मॉडर्न साइंस, हमारे शास्त्रों ने कहा था 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है? नो नो नो, 84 लाख योनियां नहीं है, अभी 1,25,00,000 योनियां हैं। फिर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोनिंग वगैरह हो रहा है, माइक्रोस्कोप आ गया। उस समय के जमाने में उन्होंने 84 लाख योनियां कहा, और आज के मॉडर्न से भी 1,25,00,000 योनियां की ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इमेजिन कितने हजार वर्ष पहले हमारे शास्त्रज्ञों ने कहा था 84 लाख योनियां। मॉडर्न साइंस कहता नो, 1,25,00,000 योनियां। पर ये भी बात स्वीकार करते हैं कि IQ is available with all the species, including the computers. EQ is available, emotional quotient is available only with a few species, but SQ is available only with the human species. दोनों मिल गए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज अवेलेबल ओनली विद द ह्यूमन बीइंग्स, ये आजकल के मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं, और हमारे शास्त्र के कहते हैं 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। नाउ दिस इज a special prerogative of a human being. This is about birthright. This is what we should aim for. This is why Swami Vivekananda says, each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. Do it either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the goal of religion. Dogmas, rituals, worship, forms, temples, churches, mosques are but secondary details. Most important thing is manifesting the divinity within. And that is the ultimate aim of life for every human being, irrespective of caste, creed, color, religion, nationality, irrespective of whether you are engineer, doctor or chartered accountant or whatsoever. Career development is a must, but it must be accompanied by character development if you want happiness and peace. If you don't want happiness and peace, go for career development. If you want happiness and peace, do you want happiness? How many of you want happiness? Long-term happiness or short-term happiness? And long-term peace or short-term peace? And long-term success or short-term success? Okay, if you want long-term success, long-term happiness and long-term peace, you have to work for a long time. If you want short-term success, short-term happiness, short-term peace, you have to work for a short time. How many of you want long-term happiness now? So that means you are ready to work for a long time. And if you want long-term happiness and everlasting happiness, everlasting peace and total fulfillment of life, then you have to develop not only IQ. If you want short-term success, IQ. If you want long-term success, EQ. And if you want total success, SQ. All the three are necessary. So now you decide. If you want total success, everlasting happiness, everlasting peace, you must have IQ, EQ and SQ. And that is what is called total personality development. Now how to develop SQ? I told you by combination of 4 yogas: Raj Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga and Karma Yoga. So to make simpler for you, just morning 1 minute meditation, because I know you don't have time. You are all very brilliant students.
इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, नो टाइम स्वामी जी, डू नॉट नो, हमको कितना प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ये मैनेजमेंट वाले हमारा पूरा खून निकाल देते हैं, ये प्रिंसिपल लेक्चर हमारे पीछे लगे रहते हैं, इतना होमवर्क देते हैं, फिर हमारा इंटरनेट चीटिंग चैटिंग के लिए टाइम ही नहीं रहता है, इंटरनेट चीटिंग चैटिंग गोइंग टुगेदर, यू नो, फिर SMS मिलने का टाइम नहीं, उसमें कहा आपने नया 4 योग डाल दिया, ठीक है, टाइम नहीं है। अच्छा, किसी को 24 घंटे से कम मिलता है तो चलो, सबको 24 घंटा मिलता है, गांधी जी को 24 घंटा मिलता था, स्वामी जी को 24 घंटा मिलता है। इन एवरीबडीज अकाउंट 86,400 seconds are deposited. Anybody getting less, please tell me. 86,400 seconds are deposited in your account early morning. Whatever seconds you utilize are yours, whatever is not utilized, gone. So try to utilize each and every second. Now, 86,400 seconds में से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो you must have a fixed routine. Try to give maximum time to study because you are a student. That is your Swadharma. But at least 1% of your time, can you give for total personality development? Your total personality development. Can you give me as Diksha? I have come to beg from you. है ना? बाबा रामदेव का कॉलेज है तो सन्यासी को तो भिक्षा देनी पड़ेगी ना, भिक्षा देने को तैयार, पैसा नहीं चाहिए मुझे, बट आई वॉन्ट टाइम, एंड टाइम इज मनी. नो, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, है ना, बिकॉज इफ यू लूज सम मनी इन बिजनेस यू कैन गेट इट बैक, बट टाइम गॉन इज गॉन. So time is more important than money. I want time from you, but not much time. 1% of your time. Can you give? Can you give 1% of your time as Diksha? Yes or no? Okay. Now what you have to do? 86,400 seconds divided by 100. तो 864 सेकंड की भिक्षा देनी है. 14.5 मिनट की भिक्षा, पूरी 15 मिनट भी नहीं है, 14.5 मिनट. उसमें क्या करना है? सुबह 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान. रात को सोते समय 1 मिनट प्रार्थना, 1 मिनट ध्यान. कितना मिनट गया? सुबह 5 मिनट इंस्पायरिंग रीडिंग, इंस्पायरिंग गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल, स्वामी विवेक की किताब, कोई सेल्फ डेवलपमेंट की किताब जिससे मन में इंस्पिरेशन मिले, मन में शक्ति मिले, पावर आ जाए, ऐसी किताब 5 मिनट. और रात को सोते समय फिर 5 मिनट रीडिंग. कितना मिनट हो गया? 14 मिनट. कितना बचा? आधा मिनट. आधा मिनट क्या करोगे? आधा मिनट के लिए CID ऑफिसर बन जाओ. CID ऑफिसर, क्योंकि मैं तो आने वाला नहीं नागपुर बड़ौदा से, भाई आप लोगों ने 14.5 मिनट दिया कि नहीं, यू बिकम योर ओन CID ऑफिसर. दैट मीन्स राइट डाउन इन योर डायरी. डायरी नहीं लगती हो तो आज से डायरी लिखना शुरू करो. आज मैंने 14.5 मिनट की भिक्षा दिया कि नहीं, आज मैंने 1 मिनट प्रार्थना किया कि नहीं, आज मैंने 10 मिनट स्वामी जी की किताब पढ़ी कि नहीं, आज मैंने पढ़ाई कॉन्सेंट्रेशन से की कि नहीं. वॉट एवर आई हैव टोल्ड, वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट, इसका कंप्लायंस रिपोर्ट तुम खुद अपने डायरी में लिखो. So for writing the diary only half a minute. That's all. ये 14.5 मिनट की भिक्षा यदि तुम दे सकोगे, you will find within 2 months you will find tremendous power coming to you. बहुत पावर आ जाएगा, मेंटल पावर आ जाएगा. छोटी छोटी प्रॉब्लम से मन डिस्टर्ब नहीं होगा, टेंशन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा. You will become so peaceful and you will become mentally strong. Confidence level आप हो जाएगा, concentration level बढ़ जाएगा. People will find out there is something, some change is coming over you. You yourself will find out great satisfaction in life. Only within 2 months you will get that result. If you invest 14.5 minutes every day. कितने लोग बोलते हैं भाई हमको तो इतना टाइम नहीं है. अच्छा, ध्यान करने के लिए बहुत आप बोलते हैं. अच्छा, कितना आपको देना पड़ेगा? बोलते हो -90 मिनट. 90 मिनट में नहीं, -90 मिनट है, -90 मिनट. व्हाट इज द मीनिंग? मॉर्निंग 15 मिनट और इवनिंग 15 मिनट ध्यान करने से आधा घंटा तुमने इन्वेस्ट किया. 2 महीने के देखोगे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में हो गई. तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 घंटा. इन्वेस्टमेंट कितना? आधा घंटा. नेट प्रॉफिट 90 मिनट. तो 90 मिनट तुम हमको नहीं दोगे, हम तुमको वापस देंगे. -90 मिनट. 90 मिनट इज अ नेट प्रॉफिट. इफ यू स्टार्ट मेडिटेशन
prayer, reading of the books. Try to invest half an hour, if not at least 14.5 minutes. If not, and you will find out the result. So this is total personality development, and there are 5 virtues that you must get in total personality development. Number 1, self-confidence. Number 2, self-reliance. Number 3, self-knowledge. Number 4, self-control. Number 5, self-sacrifice. Self-confidence is a must if you want success in everything. You must have self-confidence. Many students, they know very many things, but they cannot face the interview because of lack of confidence. So confidence is a must. Swami Vivekananda said, the old religion said he is an atheist who does not believe in himself. The old religion says he is an atheist who does not believe in God. The new religion says he is an atheist who does not believe in himself. First believe in yourself. And Swamiji said, if you have got faith in 330 millions of our gods and goddesses of our country, and if you also have faith in other gods and goddesses that we have imported from other countries, but if you do not have faith in yourself, you are an atheist. First have faith in yourself, self-confidence. How to develop self-confidence? Develop PMA, avoid NMA. What is PMA? Positive mental attitude. Avoid NMA, negative mental attitude. So there are always 2 ways of looking at a thing. Glass is half full of milk. NMA will say glass to आधा खाली है, और PMA will say glass आधा भरा हुआ है. Both are talking the same thing. मेरे को 60% मार्क्स मिला, मैं सुसाइड करूंगा, नेगेटिव. मेरे को 60% मार्क्स मिला, मैंने 80% चाहा था पर 60%, पर कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो मिला, तो that is PMA. So develop PMA, and that will give you self-confidence. Second, self-reliance. अपने पैरों पे खड़े हो. Swami Vivekananda says, you are the creator of your own destiny. तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो. You are the creator of your own destiny. हमारा जो अभी भाग्य है, उसका निर्माण किसने किया? हमारे पूर्व के कर्मों ने. जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा. As you sow, so you reap. जैसा करोगे ऐसा मिलेगा. कोई बोलते हम तो कर्म के सिद्धांत मानते ही नहीं है. मैं यही कहता हूं, तुम कर्म का सिद्धांत मानो या न मानो, कर्म का सिद्धांत अपना काम करेगा, क्योंकि देयर आर लाइट हाउस प्रिंसिपल. थर्ड, सेल्फ रिलायंस. सेकेंड, सेल्फ रिलायंस. थर्ड, सेल्फ नॉलेज. How will you get self-reliance, self-confidence? When you know that you have got infinite power within yourself. स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जनसभा में कहा था, श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि. तुम सब आनंद अमृत की संतान हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirit free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is the servant, not he the servant of matter. ओ सिंह हो, इस मिथ्या ढूंढ को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, अजर अमर आत्मा हो. तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है. स्वामी जी वहां पर एक कहानी कहा करते थे, बहुत अच्छी कहानी. सुनना कि थक गए? सुनना. एक सिंहनी थी, जंगल से जा रही थी. बस मैं 5 मिनट में पूरा कर दूंगा, उसके बाद में हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे, पर ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, जस्ट रिमेंबर दिस स्टोरी. बस सब टेंशन समाप्त. एक सिंहनी थी, जंगल से जा रही थी और एक भेड़ का झुंड जा रहा था. तो भेड़ के झुंड को पार करने के लिए सिंहनी ने छलांग लगाई. छलांग लगाई तो सिंहनी के पेट में उस समय गर्भ में एक छोटा बच्चा था. वो जाकर के भेड़ के झुंड में गिर गया और सिंहनी तो उस पार जाकर के मर गई. अब क्या किया जाए? वो छोटा बच्चा रोने लग गया. तो भेड़ की माता को दया आ गई, तो भेड़ की माता ने उसका लालन पालन शुरू किया. अब ये सिंहनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाने लग गया, भेड़ों के साथ खेलने लग गया, भेड़ों के साथ खाने लग गया. भेड़ क्या खाते हैं? घास. इसने भी घास खाना शुरू किया और भेड़ जैसे बोलती बै बै, ये भी बै बै बोलना शुरू कर दिया. भेड़ों के साथ ये सब करता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ रहता है, उसके समान बै बै करता है, उसके समान घास खाता है. पूरा भेड़ के समान ही सब काम करने लग गया. बहुत दिनों बाद एक बड़ा सिंह आया. उसने देखा जंगल में से बहुत सारी भेड़ें जा रही है, बै बै करते करते. आश्चर्य से देखा वो भेड़ों के पीछे छोटा सिंह जा रहा है, वो भी बै बै कर रहा है. सिंह होके बै बै कर रहा है. बात क्या है? तो बड़ा सिंह नजदीक आया. नजारा क्या है देखने के लिए, और ये भेड़े सिंह को देख करके इतने घबरा गई, बै 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 करके सब भागने लग गए. छोटा सिंह ये भी बै बै कर वो भी भागने लग गया.
बड़े सिंह को पकड़, तू कहाँ जाता है, तू तो मेरे से मानती है, तू मुझसे क्यों डरता है? अरे ये भेड़े हैं, मुझसे डरेगी तो स्वाभाविक है क्योंकि मैं सिंह हूँ भेड़े, और तू तो मेरे से मानती है, तू मुझसे डरता क्यों है? तो छोटा सी रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं सिंह नहीं, और डरने लग गया। बड़े सिंह ने कहा, मूर्ख, सिंह हो गया तो बोलता है तू भेड़ है, तू सिंह है, सिंह भेड़ नहीं है। वो छोटा सी और घबरा गया, और मैं तो भेड़ हूं, मैं सिंह नहीं, और रोने लग गया। कितनी बार बड़े सिंह ने समझाया तू सिंह है, भेड़ नहीं है, और छोटा सिंह और रोने लग गया। अभी बड़े सिंह को बड़ा गुस्सा है, छोटी बात में समझता नहीं है, पकड़ो, गले से पकड़ लिया, पकड़ करके घसीट करके तालाब के किनारे, देख देख ये तालाब में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, सिंह के समान या उस भेड़ के समान है, देख। छोटे सिंह ने देखा परछाई, अरे मेरा चेहरा तो सिंह के समान है, ये भेड़ के समान नहीं है। बस अब तो समझ गया तो सिंह है, अब ये बयान नहीं करना बंद कर, मेरे समान गणना कर, गणना की, चल अब तू जंगल का राजा बन गया। जंगल का राजा बन गया। स्वामी जी इस कहानी को सुना के बताते, देखो ये छोटा सिंह, ये तो पहले से सिंह था कि नया बना? पहले से सिंह था, तो क्यों प्यार करता था, क्यों रोता था? भेड़ों के साथ रहता था, जैसा सम ऐसा बन। तुम्हारे जैसे फ्रेंड होंगे ऐसे तुम बनोगे। तुम्हारे फ्रेंड बोलेंगे मैं तो सारे दिन SMS भेजूंगा, तुम बोले मैं भी सारे दिन SMS भेजूंगा। तुम्हारे फ्रेंड बोलेंगे मैं तो सारा दिन इंटरनेट चैटिंग चीटिंग करूंगा, तुम बोले मैं भी इंटरनेट चीटिंग चैटिंग करूंगा। दोनों एक साथ जाते हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा चीटिंग चैटिंग कैसे साथ में चलता है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये मैं बताऊंगा। तुम्हारे मित्र बोले सारा दिन मैं घास खाऊंगा, घास खाऊंगा मैंने ZTV MTV फलानी चैनल देखता रहूं, तो बोले मैं भी सारे दिन वो घास खाऊंगा। और तुम्हारे मित्र बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो पढ़ लिख करके बहुत महान बनना है, तुम बोले मैं भी महान बनना, मैं भी अच्छे से पढ़ लिखूंगा। सो जैसा सम ऐसा, तो अच्छे फ्रेंड रखने चाहिए। स्वामी जी आजकल अच्छे फ्रेंड मिलते कहाँ? मुझे कई लोग बोलते हैं स्वामी जी आप अच्छे फ्रेंड की बात करते, सब एकदम स्वार्थी है, आइसक्रीम पार्टी में आ जाते हैं, जब दुख आता है सब बाय बाय करते हैं। तो अच्छे फ्रेंड मिलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं तो बोलता हूँ यंगस्टर्स को, इफ यू डू नॉट गेट ए गुड फ्रेंड, मेक स्वामी विवेकानंद योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत बढ़िया किताब मिलेगी, स्वामी विवेकानंद फ्रेंड ऑफ ऑल, बिकॉज ही वॉज द फ्रेंड ऑफ ऑल यंगस्टर्स। ही सेड आई हैव गॉट माय फेथ इन यंगर जनरेशन, इट इज दे हु विल वर्क आउट द प्लान, एंड ही लिव्ड यंग, ही डाइड यंग एट द एज ऑफ 39 years। बस 39 वर्ष की उम्र में टाटा सब कर डाला। फिर उनको बोला, जब उन्होंने कहा कि मैं तो 3 दिन के बाद अपना शरीर छोड़ दूंगा, तो किसी अमेरिकन सिटीजन का, स्वामी जी व्हाई यू वांट टू गिव अप योर बॉडी सो अर्ली? स्वामी जी का, आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 years। 1500 साल का खजाना दे दिया है, 1500 साल लगेगा। मैंने जो संदेश दिया उसको वर्कआउट करने के लिए इट विल टेक 1500 years का मसाला दे दिया। 6-4 वो स्वामी जी वनडे भी नहीं खेले, T20 भी नहीं खेले, T10 भी नहीं खेले, T1 एकदम 39 साल में 1500 साल का खेल खेल डाले। He was so fast, दिन रात काम करते थे और पूरा सब क्षेत्र में महान, ऑल राउंडर, बट he did his work। जो भी होगा, तो स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से यह कहानी सुनाते हुए कहा, ये देखो छोटा से था, वो भूल गया था कि मैं सिंह हूं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा हम सब के भीतर वेदांत का ज्ञान यही कहता है, वेदांत का उपदेश क्या है, उपनिषदों का ज्ञान क्या कहता है, हमारे सबके भीतर में आत्मा है। क्या है? और उस आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति? Each soul is potentially divine and every soul has got infinite power, अनंत शक्ति is inside every human being। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, सबके भीतर में वो आत्मा है। पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, पैसा वाला हो, उच्च वर्ण हो, निम्न वर्ण हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है। और उस दिव्य आत्मा के भीतर में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। अच्छा, थोड़ी देर ध्यान करो, 2 मिनट का ध्यान करेंगे। रेडी? 2 मिनट का ध्यान। सब अपना मेरुदंड सीधा करो।
ध्यान के समय कोई भी आसन में बैठ सकते हो, सुखासन, पद्मासन, चेयर में भी बैठ सकते हो, परंतु मेरुदंड सीधा रहेगा। अब मैं बुलाऊंगा, तुम लोग बोलना, ठीक है? 2 मिनट का ध्यान, आंखें बंद करो और मन को कॉन्सेंट्रेट करो। हमारे हृदय में जो दिव्य ज्योति है, उस दिव्य ज्योति को देखने का प्रयत्न करो, दिव्य आत्मा को देखने का प्रयत्न करो, और मैं बुलाता हूं उस प्रकार से बोलो। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। ओ बोलो, ओ शांति। हरि ओम। अब आपको ये मैंने ट्रेलर बताया, अभी फिल्म नहीं बताई। वहां पर हमने मठ में ध्यान कराया था, बहुत सबको इतना आनंद आया। आज हमारे पास टाइम नहीं है, परंतु मेडिटेशन की सीडी तुमको मिल जाएगी, कैसेट मिल जाएगी, परंतु प्रतिदिन कम से कम ये 2 मिनट का भी ध्यान कर सको। मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मेरे भीतर में तो आत्मा की अनंत शक्ति है। ये छोटी छोटी समस्याएं कुछ नहीं है, दुनिया की समस्या कुछ नहीं है। मेरे पास अनंत जीवन है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति। ये मैं तो सम्राट हूं। आई एम द एम्परर ऑफ ऑल एम्परर्स। Why should I worry for a small problem? कोई मेरे साथ बात करे या न करे, मुझे उसे क्या लेना देना। My infinite God is talking with me. Why do I care for X, Y, Z? Why do I care for X, Y, Z opinion? कौन क्या बोलता है, 2 शब्द बोला, रात भर नींद नहीं है। What? मेरे भीतर में जो परमात्मा है, सत्यमेव जयते। भगवान मेरे अंतर्यामी जानते हैं मैंने कोई खराब काम नहीं किया। लोग चाहे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भूखे जा, साधु को दुर्भाव नहीं, निंदे चाहे संसार, मैं केयर नहीं करता। आई एम ऑन द राइट पाथ। मेरे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। आई डोंट केयर फॉर एक्स वाई जेड ओपिनियन। इतना पावर भीतर से मिलेगा। जो भीतर का पावर मिलेगा, बाहर की कोई परिस्थिति तुमको विचलित नहीं कर सकेगी। जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर, हवाई जहाज में जाओ, ट्रैफिक कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए जब बहुत सारी समस्याएं जीवन में आएगी, फ्लाई ओवर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये आत्मा का ज्ञान थोड़ा सा भी मिल जाएगा, थोड़ी सी भी आत्मा की वो झलक मिल जाएगी, थोड़ी सी वो ग्लिम्स मिल जाएगी, थोड़ा सा वो आनंद मिल जाएगा, सब समस्या होगा। ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस विल कम टू यू, ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, ये सब आ जाएगा जब सेल्फ नॉलेज का थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाएगा। चौथा है आत्म संयम। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and are sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free, blessed and eternal. Ye are not matter, ye are not bodies. Matter is servant, not he the servant of matter. Vedanta does not recognize sin, it only recognizes error. And the greatest error you are making when you are calling yourself a sinner, when you call yourself you are miserable, when you call yourself weak. No, you are not weak, you are strong. You are not miserable, you are almighty. Because you are soul divine. ओ सिंहो, इस मिथ्यापन को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम अजर आत्मा हो।
तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। इस बात को, वेदांत के संदेश को याद रखो। स्वामी विवेकानंद के एक एक वाक्य में इतना पावर है। एक वाक्य आपके जीवन को बदल सकता है, एक वाक्य आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। इतना पावर है एक ही सेंटेंस में। और ऐसे सब सेंटेंसेस के पावरफुल थॉट्स का किताब है, थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार। मराठी में है, हिंदी में, इंग्लिश में है। ये सब किताबों को पढ़ो। एटलीस्ट वन बुक यू मस्ट कैरी टुडे, वन स्मॉल बुक। नहीं होगा तो रुपया मेरे से ले लेना होता, 5 रुपया, 5 रुपए की किताब है। नहीं होगा मैं उधार दूंगा, बट यू मस्ट टेक एटलीस्ट वन बुक और वन फोटोग्राफ। बहुत बढ़िया फोटोग्राफ है, 5 रुपए में स्वामी विवेकानंद का फोटो को देखो 1 मिनट, और ध्यान नहीं होता है। स्वामी जी का फोटो देखो 1 मिनट खुली आंखों से, और बंद आंखों से उसी फोटो को देखने का प्रयत्न करो। ये तुम्हारे लिए ध्यान है। वो स्वामी जी का पावर तुम्हारे भीतर मानेगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का पावर, उनके कॉन्फिडेंस का पावर। इट विल परकोलेट डाउन योर हार्ट। एवरी डे मिनिमम 1 मिनट स्वामी जी का फोटो, ध्यान विथ ओपन आइज, 1 मिनट विथ क्लोज आइज, एंड एवरी डे 5 मिनट्स इंस्पिरेशन रीडिंग। देखो क्या चमत्कार होता है। What a tremendous amount of success you will get in every moment of life. What an amount of happiness and peace you will get. Just try. Make an experiment and then tell me whether your confidence level is increasing or not. So self-confidence, self-reliance, self-knowledge, self-control, आत्म संयम बहुत आवश्यक है। If you want concentration of mind, you must control your mind. You must control your mind. हमारा मन जितना नियंत्रित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। मन कैसे नियंत्रित होगा? जब मन नियमित होगा। मन कैसे नियमित होगा? जब जीवन नियमित होगा। जीवन कैसे नियमित होगा? फिक्स रूटीन, सब कुछ निश्चित। उठने का टाइम निश्चित, सोने का टाइम निश्चित, पढ़ने का टाइम निश्चित, एकाग्रता निश्चित। ये मैंने पहले भी बता दिया। फाइनली सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। सेल्फ सेक्रीफाइस डज नॉट मीन हमारे समाज सब सन्यासी बनो। सन्यासी की हमको बहुत जरूरत है। इतनी सारी डिमांड है, 1000 सेंटर वेटिंग फॉर एफिलिएशन, वेटिंग लिस्ट में, पर हम वी कैन नॉट एफिलिएट बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ नॉस। ऐसा नहीं कि साधु नहीं बन रहे, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बट द डिमांड इज टू मच एंड सप्लाई इज लेस। तो हमको सन्यासी चाहिए। शारदा मठ में सन्यासियों की कमी है, वो बहनों के लिए सन्यास शारदा मठ है, सन्यासियों के लिए रामकृष्ण मठ है, दोनों में शॉर्टेज है। बट ऑल कैन नॉट बिकम मॉन्क्स, ऑल विल नॉट बिकम मॉन्क्स। एकाध कोई मिल जाए तो ठीक है, बट वी हैव कम हियर नॉट टू कन्वर्ट टू बिकम मॉन्क बट बिकम एनलाइटेंड सिटीजन। तो त्याग किस चीज का करना है? त्याग करना है सेल्फिशनेस का, त्याग करना है स्वार्थ परायणता का। स्वार्थ परायणता का त्याग करके थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोचो। मिस नेकलाउट ने एक बार स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू? स्वामी जी क्या उत्तर दिए? ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आओ। उन्होंने क्या कहा? लव इंडिया, भारत को प्यार करो। बस स्वामी जी के प्रति हमारी सबसे बड़ी हम सेवा करना चाहते हैं, भारत को प्यार करो, अपने देश को प्यार करो। क्यों अपने देश को प्यार करो? क्योंकि हमारे देश में आध्यात्मिक संस्कृति है। इसका मतलब कि अमेरिका से हेट करेंगे? नो, स्वामी जी का सारे विश्व को प्यार करो। परंतु उनको पूछा गया, आप तो सन्यासी है, तो क्या भारत माता भारत माता भारत माता बोल रहे हैं, मेरे देश स्वदेश प्रेम बोल रहे हैं? आपके लिए तो सारा विषय एक होना चाहिए। स्वामी का बिल्कुल ठीक बात है, वसुदैव कुटुंबकम। मेरे लिए तो सभी देश बराबर हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, सारा विश्व मेरा परिवार है। परंतु पहले अपनी माँ से प्यार करो, फिर दूसरों की माँ की सेवा करो। इसलिए मैं पहले भारत माता को सेवा करने को बोलता हूँ और बाद में सभी देशों को भी मैं सेवा करने को बोलता हूँ। पहले भारत माता, क्यों? मेरी माँ है, मेरी माँ की पहली बात, बाद में दूसरों की माँ की सेवा तो करनी ही है। अपनी माँ को छोड़ के दूसरों की माँ की सेवा करने जाएगा, उसको तुम बेवकूफ बोलोगे या दूसरा कुछ बोलोगे? इसीलिए स्वामी ने कहा पहले मैं भारत की। और दूसरी बात है, भारत यदि बचेगा सारा विश्व बचेगा। क्यों? भारत के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं, तो पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के कारण सारा देश डूब जाएगा और सारा विश्व डूब जाएगा। इसलिए विश्व को बचाना है तो भारत को बचाना पड़ेगा। इसलिए लव इंडिया। स्वामी जी का अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र देता हूँ जो आज के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव। दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। और इसीलिए ये रोगी नारायण की सेवा के लिए, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, 90 आउटडोर डिस्पेंसरीज,
20 इंडोर हॉस्पिटल, 60 मोबाइल डिस्पेंसरी, 1 करोड़ से ज्यादा दर्दियों की हम लोग हर साल में सेवा करते हैं निःशुल्क, और 6000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ 6 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए का राहत कार्य होता है गरीब पर। ये सब क्यों? शिव ज्ञान से जीव सेवा, नॉट ए सोशल वर्क। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श दिया स्वामी विवेकानंद ने, उसी का पालन करना है। तो हम अपने जितना हो सके थोड़ा सा स्वार्थ का त्याग करें। स्वामी जी ने मैसूर महाराज को बहुत बढ़िया पत्र लिखा था। ही रोट अ ब्यूटीफुल लेटर टू प्रिंस ऑफ मैसूर, जो उनके शिष्य थे। माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराजा, जो दूसरों के लिए जीता है वही सचमुच में जीता है, बाकी सब तो मुर्दे के बराबर है। आज देखो सारे और मुर्दे ही मुर्दे। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान देश जाए भागने से, हमको ये मुर्दों में प्राण संचार करना पड़ेगा। कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक शॉक कहां से आएगा? स्वामी विवेकानंद की किताब से। मेरी बात नहीं है। फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं, बहुत बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं, हिज वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a 30 distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, मानो रोमांच हुआ आता है जब स्वामी जी की किताबों को पढ़ता हूँ। वो इलेक्ट्रिक शॉक सबको देना पड़ेगा, तब सबके भीतर में वो राक्षस की जो प्रवृत्ति है, स्वार्थ की प्रवृत्ति, वो जाएगी। निस्वार्थता, देशभक्ति का पाठ वो लोग सीखेंगे, और तब हम लोग सच्चे अर्थ में मनुष्य बनेंगे। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। एंड देन वी विल बी, तो जब चरित्र निर्माण हो जाएगा, राष्ट्र पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा, अपने आप राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, और राष्ट्र निर्माण होगा तो विश्व निर्माण अपने आप हो जाएगा। इसलिए चरित्र निर्माण की बात स्वामी जी ने कही थी, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रोज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। सबके पास मोबाइल है, रात को मोबाइल का चार्ज करते हो ना, नहीं तो SMS नहीं आएगा। इसलिए रोज रात को मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लग में डाल देते हो ना, उसी समय हमारी इस मेंटल बैटरी को चार्ज करने के लिए स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो। जब तक भी तुम्हारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, तब तक तुम्हारी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। कितना बढ़िया हुआ है बताया है। आज ही एक किताब ले लो स्वामी जी की छोटी, बाद में रामकृष्ण मठ में जाके और किताबें लेना, या वहां पर लाइब्रेरी मेंबर बन जाना, पर कुछ किताब ले लो आज, और रोज रात को क्या करना, मोबाइल जब चार्जिंग के लिए रखोगे, वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए मोबाइल बैटरी को, इसको भी इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए मेंटल बैटरी को, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा स्वामी की किताबों से। जस्ट सी वंडरफुल रिजल्ट, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। तुम लोग को मिलकर के बड़ा आनंद हुआ। आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू। आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू, आई टोल्ड यू आस्क देम। मैं बात नहीं करूंगा, मेरे को क्वेश्चन आंसर करना है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बोल दीजिए ताकि उन लोग की थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा स्टार्ट हो जाए। आई वांटेड टू स्पीक ए फ्यू वर्ड्स, but I really am amazed. You got so beautiful power of concentration of mind. और आप लोग इतने attentive थे, and you were so disciplined that you made me talk for 2 hours, for which I